We must bring your attention to the north of this country, where a gripping heat wave is scorching through the northern plains. But at the same time, in the national capital, ladies and gentlemen, there's a water shortage that continues to worsen for people in the national capital. Aam Aadmi Party MLAs, mind you, the current dispensation is the Aam Aadmi Party government in the Delhi, which is the national capital, and they have penned a letter to the new Jal Shakti Minister C.R. Patil, and the delegation is planning to meet the minister. Aam Aadmi Party MLAs revealed that it is due to interstate communication problems and dilemma that the national capital is struggling to meet its water needs. Now, of course, the delegation gave a reaction to the press. Let's quickly listen in to that as well. और उन्हें बताया कि दिल्ली के अंदर यमुना में पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से पानी का प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति कम हो पा रही है। इस गर्मी के अंदर जल ही जीवन है और जल का संकट यानी जीवन का संकट। हमने कल केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं C.R. पाटिल साहब, उनको पत्र लिखा, उन्हें ईमेल किया, उनके जितने भी पब्लिक डोमेन पे और व्यक्तिगत स्रोतों से जो नंबर मिल सकते थे उन नंबरों पे हमने SMS भी किया, व्हाट्सएप भी किया और उन्हें बताया कि दिल्ली के अंदर जो जल का संकट है वो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व हो सकता है। दिल्ली के लोग हैरान परेशान है पानी की कमी की वजह से। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार है, लेकिन बीच में जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो किसी को करना पड़ेगा। आप केंद्र की सरकार में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप मंत्री हैं इस विभाग के, आपसे अपेक्षा है, आपसे उम्मीद है कि आप अभिभावक की भूमिका निभाते हुए, बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो अगर कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल जाएगा। Meanwhile, water was seen being supplied through tankers to locals in Okhla and Govindpuri amid the summer crisis. Take a look at that. People running helter-skelter, trying to vie for any space that they can get to put their particular pipe inside the water tanker, fill their buckets and head back home. Water crisis more than real in the national capital at this point in time. The Supreme Court has also intervened and come down heavy on the Delhi government, saying that the Aam Aadmi Party needs to do more to keep a check on the water tanker mafia, else it will have to order the Delhi police to do so. Meanwhile, Delhi Water Minister Atishi addressed the issue, blaming the severe heat wave for the ongoing shortage. Now, Aam Aadmi Party urges Haryana for releasing water into Yamuna and the humanitarian grounds. But meanwhile, Atishi has been calling out and blaming, in fact, the severe heat wave in the national capital for this particular conundrum. It has also urged Haryana for releasing water into Yamuna. Delhi is currently under deficit of 70 million gallons per day in terms of water production. The Wazirabad pond is almost dry and the Munak canal is also short of water. All 7 water treatment plants are producing less water. दिल्ली में पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। Well, a Bharatiya Janata Party Member of Parliament, Yogendra Chandolia, criticized Chief Minister Arvind Kejriwal, blaming his government for the decade-long crisis. Mind you, the Bharatiya Janata Party and the Congress both have been protesting
over the water crisis in the national capital against the Aam Aadmi Party. It's a two-pronged sword against the Aam Aadmi Party. He accused Water Minister Atishi of lying and claimed that the Delhi Jal Board is in debt due to the tanker mafia. देखिए कि मेरे पीछे हरियाणा है और मेरे सामने दिल्ली है। 890 क्यूसेक पानी, ये एग्रीमेंट है हरियाणा सरकार का और दिल्ली सरकार का। 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा लगातार दिल्ली को देता है और ये पानी आप बहता हुआ देख सकते हैं। इस पानी का टैंकर माफिया यहां से पानी भरते थे, उसकी शिकायत वीरेंद्र सचदेवा जी मेरे प्रदेश के अध्यक्ष और मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को की। उसके बाद यहां पर रात की भी गश्त है तो पुलिस यहां पर बैठती है। 1049 क्यूसेक पानी का इस्तेमाल दिल्ली की जनता के लिए जो होना था, इनके 5 ट्रीटमेंट प्लांट हैं। करप्शन के चलते जिस व्यक्ति को टेंडर देना चाहते थे उसको इन्होंने नहीं दिया और सेकंड पार्टी को दे दिया। वो कोर्ट चले गए और कोर्ट ने इनके फैसले को रद्द किया, लेकिन उसके बाद भी वर्क ऑर्डर नहीं किया। 11 साल से अगर दिल्ली के लोग 10 साल से दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, इनकी मंत्री आतिशी जो केवल झूठ बोलने का काम करती है, केवल झूठ के जल बोर्ड जो है नकारा साबित हुआ है। Well, that's not all. West Delhi candidate Kamaljeet Sherawat also commented on the issue. Listen in. द्वारका की सोसाइटी से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, RWA एसोसिएशंस मिलने के लिए आ रही हैं कि हमें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है और पानी के टैंकर भी 1400 रुपये 1500 रुपये में उनको मिल रहे हैं। सरकारी सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। तो हमने जब इस बात को ढूंढा कि भाई क्या कारण ऐसा है, तो हम पहले से जानते थे कि पानी की वेस्टेज होती है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पानी लगातार पूरे फ्लो के साथ, जैसे कि वो एक आप कहिए कि प्रेशर के पानी की तरह बह रहा है और यहाँ पर लगातार पानी की वेस्टेज हो रही है। सीधा दिल्ली जल बोर्ड के पाइप यहाँ पर गले हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनसे पानी की वेस्टेज है। और यही बात हम लगातार उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सरकारों पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहाँ पर पानी की वेस्टेज हो रही है। ना वो जो उनके एसटीपी पॉइंट हैं उनको रखाव कर पा रही है, ना वो इस तरह के पॉइंट्स जो वहाँ पे वेस्टेज हो रही है उनको रोक पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कहिए अपराध है दिल्ली की जनता के साथ कि इस तरह का काम हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। द्वारका के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सारी बात पता है, फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस पानी से लोग यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं, पानी यहाँ पर वेस्ट होता है और सारा यहाँ पर सीवर के पानी में मिलता है। तो हमारा आज आपके माध्यम से कहना है कि बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती है, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। रोज दिल्ली के जनता को पानी के लिए, पेंशन के लिए खून के आंसू रुलाकर जो आम आदमी पार्टी त्राही त्राही मचाए हुए है, अब इसका जवाब दिल्ली की जनता बहुत जल्द इनको हटा कर देगी। ये सारी समस्या टैंकर माफियाओं को कौन फला फुला रहा है? पहले कांग्रेस फलाती फुलाती थी, आज आम आदमी पार्टी फला फुला रही है। हरियाणा से, यूपी से अगर पानी बढ़ाकर नहीं दिया जाता तो इनके टैंकरों को भी पानी नहीं मिलती, मगर ये पानी देना नहीं चाहते, पानी बेचना चाहते हैं। दे आर सेलिंग वाटर इन दिल्ली और दिल्ली की जनता अब सब कुछ जान चुकी है। अब दिल्ली की जनता ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खेल से बाहर आएगी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिल्ली का जो डबल इंजन है मोदी जी को देगी। Well, now, even as the ground water level depletes in the national capital, the water table, as it were, is on the decline. My colleague Puneet Sharma brings you details from the ground over the Delhi water crisis.
दिल्ली में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है ताकि लोग पीने के पानी उनको मिल पाए। दिल्ली के चाणक्यपुरी के संजय कैंप का हाल यही है। हर रोज सुबह होते के साथ ही लोग लंबी लाइन में रखते हैं, अपने घरों से इस तरीके से डिब्बे लेकर के आते हैं और यहाँ पर फिलहाल एक बोरवेल लगाया गया है जिसके जरिए आप देखेंगे कि सुबह सुबह यहाँ पर लोग पानी भरने के लिए आते हैं। यहाँ पर टैंकर के जरिए भी पानी की सप्लाई की जाती है। फिलहाल आज यहाँ पर पानी का टैंकर नहीं आ रहा है जिस वजह से ये लोग इस तरीके से पानी भरने के लिए परेशान हैं। कई लोग आप देखेंगे कि पानी भरने को लेकर के लोगों के बीच में बहस भी होती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है। पानी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एलजी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया। टैंकर माफिया जो पानी को बेच देते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बाकायदा ताकीद की गई है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाके, संगम विहार, देवली, गीता कॉलोनी, चाणक्यपुरी, इसके अलावा द्वारके का तमाम इलाके जो हैं, रोहिणी का इलाका है, वहां पर इसी तरीके से रोज आपको देखने को मिलता है। सुबह सुबह लोग उठकर सबसे पहले अपने घर से इस तरीके से बाल्टी लेकर के आते हैं और घंटों लाइन में लग करके वो पानी भरते हैं। लोग परेशान हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा जो है वो मुनक नहर में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रहा। 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए लेकिन वो कम पानी छोड़ रहा है जिस वजह से दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 7, उसमें भी पानी की कमी हो रही है और यही वजह है कि दिल्ली में फिलहाल पानी की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली की जनता को 1000 MGD पानी चाहिए होता है जिससे 1000 MGD पानी की जो प्रोडक्शन किया जाता है उससे दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाया जाता है, वही पूर्ति करता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुनक नहर में पानी कम आ रहा है, टैंकरों से पानी चोरी है, तो ऐसे में 1000 MGD से कम पानी का प्रोडक्शन हो रहा है और यही वजह है कि दिल्ली में इस वक्त एक एक बूंद पानी के लिए ठीक इसी तरीके का हाहाकार मचा हुआ है। लोग इसी तरीके से लाइन में लग रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सबसे पहला काम सुबह उठकर के जो लोगों का होता है वो अपने घर में पानी की जरूरत को पूरा करना होता है। Meanwhile, another aspect and dimension to the water wars in the national capital. Now, the Delhi's water minister Atishi has penned a letter to the Delhi Police Commissioner Sanjay Arora, and she's alleged, the water minister has alleged that there is a conspiracy to cut the pipeline in the national capital. They've urged to provide security to the main water pipeline in the national capital. Yesterday, 6 bolts, this is being written in that letter, yesterday 6 bolts were deliberately cut in the pipeline of South Delhi in the national capital. This has been alleged by the water minister, Aam Aadmi Party leader Atishi. There is a conspiracy to increase the water problem in the national capital, and due to this conspiracy, there is 25% water shortage